So in the last class, we discussed till this particular section, that is compulsory acquisition of agricultural land. And we already know that the agricultural land situated in the rural area is not a capital asset. Okay, that we have already covered in the definition of all the items which are considered as capital assets. Okay, so agricultural land which is situated in rural area is not a capital asset, so no capital gains will be calculated. बट जो अर्बन एरियाज में होती है एग्रीकल्चरल लैंड उस पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट तो होता है, बट देयर आर सम एग्जेम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल. ठीक है, सो वो एग्जेम्पशंस कैसे कैसे मिलेंगे अब वो हम डिटेल में सीखेंगे. So there is section 54B, which is for claiming exemption from capital gains on transfer of agricultural land. Okay, it's very important for the examination point of view. So this exemption is available to all individuals and HUFs. Okay, so these are the two categories of persons for whom this particular exemption is available. The land which is being sold must have been used for agricultural purposes by the individual or his parents or by the HUF for a period of 2 years immediately before the date of the transfer. So this is the first condition which has to be satisfied. ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल गेन्स हमने निकाल लिए हैं कि ये कैपिटल गेन्स है ट्रांसफर होने के बाद, अब एग्जेम्पशन की बात हो रही है. सो एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और HUF को. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज कि वो जो एग्रीकल्चर लैंड जो सेल ऑफ हुई है, जो ट्रांसफर हुई है, उससे इमीडिएटली पीछे 2 साल तक it must have been used for agricultural purposes either by the individual or his her parents. ठीक है, या फिर by HUFs. ये 2 years की मिनिमम कंडीशन है कि वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, अनदर लैंड can be in rural or in urban area for the agricultural purposes should be purchased within a period of 2 years from the date of transfer of this land. So this is the third condition कि आपको जो आपको पैसा मिला है ना, जो फायदा हुआ है कैपिटल गेन्स का, आपको वो तभी मिलेगा जब जो आपको पैसा मिला है आप एक दोबारा एक एग्रीकल्चर लैंड को ही खरीद रहे हो. It could be in the rural area, it could be in the urban area, doesn't matter, but it should be for agricultural purposes and the time limit is 2 years. ठीक है, अगर आप नेक्स्ट 2 years के अंदर अंदर आप एक और एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये थर्ड कंडीशन थी. अब नाउ द फोर्थ कंडीशन, the new agricultural land which is purchased to claim the capital gains exemption should not be sold within a period of 3 years from the date of purchase. ठीक है, so this is the fourth condition कि जो अब लैंड खरीद ली है उसको आप नेक्स्ट कम से कम 3 साल रखोगे. अगर आप नहीं रखते हो तो जो आपको कैपिटल गेन्स पे एग्जेम्पशन मिली है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी. ठीक है, दिस विल बी रिवोक्ड if you sell. काफी बार लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं सिर्फ कैपिटल गेन्स बचाने के लिए. ठीक है, एक और एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, लेकिन उसको विद इन 3 years फिर वो बेच देते. तो गवर्नमेंट कहती है 3 साल के अंदर नहीं बेचो, इसके बाद आप बेच सकते हो, बट अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो हम लोग जो हमने आपको कैपिटल गेन दिया हम वो वापस रिवोक कर लेंगे. ठीक है, if the new asset is transferred within the 3 years of its acquisition, exemption will be taken back. For calculating capital gains on transfer of new asset, cost of acquisition will be calculated as original cost of acquisition minus exemption availed under section 54B. So जब आप दोबारा से कैपिटल गेन्स निकालोगे तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रखोगे, उसकी रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी एक्चुअल में थी माइनस जो भी आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली थी पहले, अब वो वापस आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट ऑलरेडी उसकी कम हो जाएगी, एक्विजिशन की कॉस्ट. ठीक है, सो दीज आर द मेन 4 कंडीशंस. ठीक है, कि पर्सन की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, जब बेच रहा है उससे 2 साल पहले तक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, बेचने के विद इन 2 years वो एक और एग्रीकल्चर लैंड ले ले, और जो वो खरीद रहे हैं उसको विद इन द नेक्स्ट 3 years उसको बेचे नहीं. ठीक है, अगर बेचेगा तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कैपिटल गेन्स आपके फिर से टैक्सेबल हो जाएंगे. इन केस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
in case the assessee is not able to purchase the agricultural land before the date of furnishing of his income tax return. So income tax return ITR क्या होता है? हर category of person they file it with the income tax authorities. ठीक है? So काफी बार क्या होता है? हमें we are not able to purchase the land at the time of filing the return. जैसे in the normal scenarios it is 31st July. ठीक है? हम लोगों के 31st July होती है. For different category of persons it has a different for different category of person नहीं, I'll say category of ITR के नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके. जब हम ITR इन डिटेल करेंगे ना तब आपको मैं दोबारा कराऊंगी. तो क्या होता है उसकी ना हर एक की ना डेडलाइन होती है कि यहाँ तक इस डेडलाइन तक आपको अपनी ITR फिल करनी है. ITR में क्या होता है यू disclose all your incomes. ठीक है कि this was the income under the head salary, this was under the head PGBP, this was under the head capital gains. Means you disclose all your incomes, and at the same time you will disclose all the tax which is being paid to the government so far, and if there is any balance you will pay it, and if there is any refund you will get it. ठीक है. So ITR में ऐसा करते हैं, बताते हैं गवर्नमेंट को कि ये था. So अगर वहां बताने तक सपोज आपको खरीदनी थी बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस यू वर नॉट एबल टू परचेज द लैंड, अब क्या करोगे? ITR भरोगे, उसमें तो दिखा नहीं सकते बिकॉज आपने खरीदी नहीं है. तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, आप ITR भरने से पहले बैंक में क्या करोगे, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, एक्सेप्ट इन द रूरल ब्रांच ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर IDBI बैंक में एक ना स्कीम होती है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम. ठीक है, 1988 के एक्ट के थ्रू ये स्कीम है. उसमें क्या है कि आप एक प्रॉपर जो अमाउंट आप जैसे जो आपका कैपिटल गेन्स आया था जो आप आगे जाके आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट करा दोगे ITR भरने से पहले, और आप फिर ITR में डाल दोगे कि हमने अकाउंट में वहां डिपॉजिट करा दिया है और अब हम इन फ्यूचर, बिकॉज 2 साल का टाइम है ना, ठीक है, 2 साल के अंदर आप न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो. तो आप बस ITR में ये शो कर दोगे कि मैंने डिपॉजिट करा दिया है बिकॉज आई हैव अ इंटेंशन टू बाय द एग्रीकल्चर लैंड इन द फ्यूचर, सो काइंडली गिव मी द एग्जेम्पशन राइट नाउ. ठीक है. सो इससे क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को डिफरेंट ये डिफरेंट ऑप्शन है. एक तो आप खरीद ही लो, बट आप नहीं खरीद पाते हो तो आप एक काम करो, आप कैपिटल गेन्स अकाउंट खुलवा लो. ठीक है. और ये बैंक्स के अंदर होते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, वहां जाके वो सारा का सारा अमाउंट आप डिपॉजिट कर दो कि मैंने जितना मुझे गेन्स हुआ था मैंने सारा का सारा डिपॉजिट कर दिया, सो काइंडली गिव मी द एग्जेम्पशन. ठीक है. और ये सिर्फ उसी अमाउंट पे होगी जो आपने डिपॉजिट कराया. फॉर एग्जांपल आपको 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है और आपने सिर्फ 4 करोड़ दिखाया तो 4 करोड़ पे ही मिलेगा, नॉट 5 करोड़. ठीक है. जितना आप डिपॉजिट कराओगे उस पे आपको. if the amount which was deposited as per capital gains account scheme was not used for the purchase of agricultural land, it shall be treated as capital gain of a period of 2 years from the date of sale of land expires. So suppose अब आपने डिपॉजिट भी करा दिया, तो गवर्नमेंट कहती है डिपॉजिट कराने के बाद अगर आप वो 2 साल का जो पीरियड आपको दिया हुआ है जब आप बेचोगे उससे नेक्स्ट 2 इयर्स में आपको खरीदनी है, अगर आपने वो नहीं खरीदा है तो फिर कैपिटल गेन्स फिर से कैलकुलेट होंगे, जो आपकी एग्जेम्पशंस आपको गिवन थी वो फिर से वापस ले ली जाएगी. ठीक है. एंड withdrawal from this account is permissible if it is not used by the assessee to claim exemption under this section. ठीक है. मतलब विद इन 2 इयर्स आप नहीं खरीद पा रहे तो आप रेडी हो दैट यू हैव टू पे द कैपिटल गेन्स टू द गवर्नमेंट, सो आप विड्रॉ करा सकते हो उसमें से. ठीक है. जस्ट इन योर माइंड जस्ट थिंक अबाउट that the person wants to claim the exemption of the capital gains which he has earned while sending his agricultural land which is situated in urban area. So these are the ways through which he can claim the exemption, and in any case if any of the condition is not satisfied then the government can ask him to repay the capital gains for which he has claimed the exemption earlier. ठीक है. सो जो कंडीशंस है आपको ये आपको लर्न करनी है. ठीक है. क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है. क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन? So cost of the new agricultural land purchased or the amount of capital gains whichever is lower. ठीक है.
एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट, और जो आपको कैपिटल गेन्स हुए उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वही कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Mr. X sells agricultural land situated in Delhi for rupees 60 lakhs. ठीक है, सो अर्बन एरिया, उसमें 60 lakhs की उसने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेची है ऑन 4th जुलाई 2020, which is in our previous year 2021. It was purchased by him on 1st March 2007 for rupees 15 lakh 18,000. ठीक है, this is the cost of acquisition. On July 15, 2021, he purchased agricultural land in rural area for rupees 4,30,000 and deposits rupees 10,80,000 in a deposit account for availing the exemption under section 54B. तो उसने क्या किया तुरंत, ठीक है, और 11 दिन के अंदर अंदर उसने एक एग्रीकल्चरल लैंड तो खरीदी। कितने की खरीदी? 4,30,000 की। और उसने बाकी जो डिपॉजिट था कुछ उसने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया कैपिटल गेन स्कीम्स के अंडर, जहां पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो उसने बैंक में 10,80,000 रुपए डिपॉजिट करा दिया। अब आता है ही परचेजेस अनदर लैंड इन गुरुग्राम ऑन जून 30, 2020 फॉर रुपीज 8,47,000 बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट। नाउ सी, उसने बेची कब है? 4th जुलाई 2020. So next 2 years के अंदर he has to purchase the another agricultural land. So next 2 years कब खत्म होंगे? 3rd जुलाई 2022, राइट? उसमें 2 साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसने उसके अंडर ही खरीद लिया। ठीक है, 3rd जुलाई 2022 को होता, उसने 30 जून 2022 को उसने एक और खरीदी। तो इसका मतलब इसका एग्जेम्पशन भी, मतलब उसने जो 2 इयर्स की कंडीशन थी वो उसकी फुलफिल हो रही है, तो इसके एग्जेम्पशन को वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट लेफ्ट था, ये तो 10,80,000 डिपॉजिट कराए थे ना, 8,47,000 यूज करे, जो बाकी अमाउंट जो लेफ्ट था डिपॉजिट अकाउंट में वो उसने विड्रॉ करा दिया कब? 10 जुलाई 2022 को। इसका मतलब इस अमाउंट का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने डिपॉजिट तो कराया था खरीदने के लिए, बट उसने उसको फिर यूज नहीं किया एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे फिर से उसका कैपिटल गेन्स उसको पे करना पड़ सकता है। द एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, जो उसने रूरल एरिया में खरीदी थी ना ये 4,30,000 की, is transferred on April 2nd, 2023 for rupees 4,90,000. ठीक है, सो जो 2 अप्रैल 2023 में उसने बेच दी। अब ये देखो 3 साल तक होल्ड करनी पड़ती है एग्रीकल्चर लैंड, राइट? सो उसने कब खरीदी थी? He purchased it on 15th July 2021. सो इसको 3 साल कब होते? 2024 में, लेकिन इसने 2023 में ही बेच। ठीक है, इसका मतलब फिर से इसका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। The land in Gurugram is transferred on July 17, 2023. अब गुरुग्राम में कब खरीदी थी? 2022 में। ये भी इसने 3 साल के अंदर बेच दी। इसका मतलब जो भी इसने खरीदा था, इसने एग्जेम्पशन तो बिल्कुल उसी साल ले ली 2021 के प्रीवियस ईयर में, बट इसने कंडीशंस नहीं अबाइड करी, इसी वजह से इसका फिर से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम कैपिटल गेन्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल गेन्स निकलेगा 60 lakhs इज द सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, सो सेल्स कंसिडरेशन इज 60 lakhs। ठीक है, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इट इज नील। 60 lakhs इज द नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने की खरीदी थी? 15,18,000 की। कब खरीदी थी? इन द प्रीवियस ईयर 6/7। ठीक है, 6/7 का CII लगेगा, so it is 122 into 301, the CII of the previous year in which the property is transferred. So it's transferred in previous year 2021, uska CII. So when you calculate this, you will get this amount, 37,45,230. So balance, this is your abhi capital gains without claiming any exemption. अब एग्जेम्पशन उसको कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन क्या होती है? जो आपने या तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली हो या फिर आपने डिपॉजिट करा दिया हो। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली थी एक तो 4,30,000 की, राइट? बाकी 10,80,000 उसने क्या किया था? उसने डिपॉजिट करा दिया था। तो ये दोनों आपके जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया और खरीदा है
और कैपिटल गेन्स विच एवर इज लोअर, तो लोअर तो यही अमाउंट है, दैट इज 15,10,000, इसकी आपको एग्जेम्पशन मिल गई अंडर सेक्शन 54B। इसको इससे माइनस करोगे, दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब आप ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसने बस 15,10,000 का इसने क्लेम की थी एग्जेम्पशन। ठीक है, सो दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 2021। अब आता है वो कंडीशन जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसने लैंड नहीं खरीदी। ठीक है, दैट इज लैंड तो खरीद ली इसने, बट जो अमाउंट लेफ्ट था डिपॉजिट अकाउंट में दैट वाज विथड्रॉन ऑन 10th जुलाई 2022, मतलब 2 इयर्स के अंदर जो भी उसका डिफरेंस था। तो हाउ वी विल कैलकुलेट इट, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द डिपॉजिट अकाउंट इज 10,80,000 और लैंड कितने की खरीदी, बस 8,47,000 की। जो भी उसने अमाउंट विड्रॉ कराया है दैट इज द बैलेंस, इट विल बी नाउ टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्लियर है सबको, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर उसको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी थी। सो उसने कुछ तो खरीद ली, बट कुछ उसका अमाउंट रह गया। कैपिटल गेन्स का जो उसने अकाउंट खुलवाया था बैंक के साथ, वो उसका कुछ अमाउंट रह गया। अब वो विड्रॉ करा रहा है, तो क्लेम ले चुका है ना, एग्जेम्पशन ले चुका है, तो नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो अब इसको टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है जो इसने अब एग्रीकल्चरल लैंड्स खरीदी थी, अब ये इसको बेच रहा है। 3 साल के लिए वो रख नहीं रहा है, अब इनको ये फिर से बेच रहा है। तो इसने कब बेची है, देखो, जो रूरल एरिया में खरीदी थी उसने, वो उसने अप्रैल 2 2023 में बेची है, यानी प्रीवियस ईयर 23-24। और जो गुरुग्राम की थी वो भी इसने प्रीवियस ईयर 23-24 में ही बेची है दोनों। ठीक है, सो अब इसका मतलब इसने जो फोर्थ कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं करी। अब इसका कैपिटल गेन्स फिर से कैलकुलेट होगा, और उसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो पुराना था उसमें से माइनस हो जाएगा जो उसने अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन ली थी, वो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया 4,90,000। देखो, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया पे टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट टैक्सेबल। इट इज बाय द रूल दैट इफ द एग्रीकल्चरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सिर्फ अर्बन एरिया वाले पे कैलकुलेट होते हैं, रूरल एरिया पे नहीं होते। सो यहाँ तो नॉट टैक्सेबल आ जाएगा। बट जो अर्बन एरिया का सेल प्रोसीड है 8,70,000, अब उसमें से देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 15,80,000। इसी में से हम देखते हैं कि इसने इसमें क्लेम कितना किया था। ठीक है, ही अच्छा सॉरी, इसने खरीदी थी 8,47,000 की और इसने बेची भी है 8,47,000। नहीं नहीं, इसने बेची 8,70,000 की। ठीक है, सो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इसकी 8,47,000, वो उसको एंटायरली एग्जेम्प्टेड हो गई थी। देखो, पूरा 8,47,000 का एग्जेम्पशन मिला था ना उसको। यहाँ पे पूरा मिला था ना 8,47,000 का अमाउंट, पूरा इतना डिपॉजिटेड था और इतने की उसने खरीदी थी, तो इसको मिल गया था एग्जेम्पशन पूरा 8,47,000 का। सो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 8,47,000 की, वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है उसका एग्जेम्पशन, इस वजह से इट इज नेट। तो पूरा का पूरा 8,70,000 विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, this is a very comprehensive example, it's very complicated, but if you will understand this particular portion then every other question will become very easy for you. ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर जो एक्विजिशन वाले केसेस हैं, इसमें आपको हर कंडीशन के असेसमेंट ईयर में देखना है कि कुछ हुआ तो नहीं है। जैसे 2 इयर्स तक उसको खरीदनी है, तो देखना है 2 इयर्स तक उसने खरीदी है नहीं खरीदी है। उसके नेक्स्ट देखना है कि खरीदने के बाद 3 साल तक रखी है नहीं रखी है। जिस साल नहीं रखी है उसी साल आप वापस क्लेम कर लोगे एग्जेम्पशन। ठीक है, और एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। ये अपना अच्छे से याद कर लेना, सिर्फ अर्बन एरिया वाली कैलकुलेट होती है, बट एग्जेम्पशन मिल जाता है इन केस यू आर बाइंग एन एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट अगर है तो बेटा अभी पूछ लो, अदरवाइज आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम जो हमने
कैलकुलेट करी है वो हमने कौन सा वो देखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कौन सी कैलकुलेट करी है, लास्ट वाला? हम सबसे पहले जो हमने एग्जेम्पशन कैलकुलेट करी है। सबसे पहले तो उसने अपनी जब एग्रीकल्चरल लैंड पहली बेची, जो दिल्ली में बेची उसने 60 लाख की, पहले सबसे यस मैम। पहले हमने ये स्टेटमेंट करी है। हाँ, अब बोलो। मैम उसके बाद हमने अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैलकुलेट करी कि विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड और अमाउंट ऑफ नहीं कैपिटल। नहीं, हाँ हाँ, राइट राइट, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन द डिपॉजिट अकाउंट और द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ठीक है, सो ये बैलेंस क्या था, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना, उसमें ये लिखा है ना बट उसमें से क्या हुई, लैंड। cost of the new agricultural land purchased or the amount of capital gains whichever। अच्छा, यहाँ पे I can amend it, that includes any amount which is deposited by law। यही होता है, बट गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप नहीं खरीद पाते तो आप डिपॉजिट करा सकते हो, तो भी मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज्ड है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी and in case any amount is deposited in the capital schemes of the capital gain schemes as per section 19 as per 1988 in any of the public sector bank, दोनों को इंक्लूड करके। इसी वजह से इन दोनों को ऐड करके आपका जो अमाउंट आ रहा था 15,10,000, वो इन दोनों 22,54,770 और 15,10,000 में से दोनों लोअर 15,10,000 था, इस वजह से 15,10,000 की एग्जेप्शन मिली है। क्लियर है? यस मैम। और किसी को डाउट तो नहीं है? Okay, let's do next then. Section 54 is for claiming exemption from capital gains on transfer of residential house property। ठीक है, so इसको अब इमेजिन करके करना कि हम अपना घर बेच रहे हैं। ठीक है, हम अपनी एक रेजिडेंशियल, जहां पे हम रहते थे, हम अपनी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। सो उस केस में हमें क्या एग्जेम्पशन मिल सकती है? ठीक है, सो कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, these are the provisions which are there in the income tax. Who can claim the exemption? Again, an individual or HUF only. ठीक है, not other categories of persons. Which specific asset is eligible for exemption? If it a residential house property, it should be a long-term residential house property, not a short-term. ठीक है, immovable property की क्या category होती है हमारी? 24 months. So 24 months से ज्यादा का वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तब। Which asset the taxpayer should acquire to get the benefit of exemption? So exemption is available if one residential house property is purchased or constructed in India, and I think after assessment year 2021 now 2 residential properties have been allowed। पहले क्या होता था, एक बेचकर अगर आप दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलती थी। अब असेसमेंट ईयर 2021 से क्या हुआ है, आप 2 भी खरीद सकते हो। अगर जैसे आपका कैपिटल गेन बहुत ज्यादा है और आप एक की बजाय अगर आप 2 खरीदना चाहते हो तो भी मिल सकता है, बट लिमिट है उस पे, मैक्सिमम 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं एग्जेम्पशन मिल सकता आपको। Then next is, what is the time limit for acquiring the new asset? ठीक है, अब ये टाइम लिमिट आ गया, जैसे हमारी एग्रीकल्चर लैंड में टाइम लिमिट था ना, अब ऐसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में residential house can be purchased within 1 year before the transfer or within 2 years after the transfer। so काफी बार क्या होता है, लोग पहले खरीद लेते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि हमने एग्रीमेंट बना लिया, हमने खरीद लिया और हम अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो उसमें भी अलाउड है। तो गवर्नमेंट कहती है या तो आपने जब बेचा है उससे 1 साल पहले आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदी हो, नहीं खरीदी तो नेक्स्ट 2 इयर्स में खरीदनी है। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट कराना, व्हाटएवर द केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, सो परचेज की कंडीशन है 1 ईयर बिफोर
and 2 year after the transfer. Construction की क्या है? Residential house can be constructed within 3 years from the transfer. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? 3 years की कंडीशन है. For bank deposits, ठीक है, bank deposits, these time limits shall be determined from the date of receipt of compensation. So जब भी आपको compensation मिला है, मतलब sales consideration, उसी के within I think the same year is there, 2 years के अंदर आपको वो amount, अगर आप ITR से पहले उस अमाउंट को अगर डिपॉजिट करा देते हो, जो एग्रीकल्चरल लैंड में बोला था मैंने, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, अगर आप वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है. भले आप खरीदो नहीं, लेकिन आप ITR भरने से पहले उसको डिपॉजिट करा के, मतलब ITR में मेंशन कर दो कि मैंने उस अकाउंट में डिपॉजिट कराया हुआ है, सो विल आई विल बी क्लेमिंग द एग्जेम्पशन. ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट वाला सेम रहेगा. Then how much is exempted? Investment in the new asset or capital gain, whichever is lower. So जैसे हमारा agricultural land में था, same, the cost of the new asset or the capital gain, whichever is lower. Is it possible to revoke the exemption in a subsequent year? So it is same, that the person who has acquired the new property or who has constructed a new property, it should be with him for at least 3 years from the date of exemption or from the date of completion of the property. Otherwise the exemption will be revoked back. ठीक है, और उसका रिवोक बैक का क्या प्रोसेस होगा? सेम, the original cost of acquisition minus the exemption which is already claimed by the assessee. ठीक है, सेम जैसे एग्रीकल्चर लैंड का किया था वैसे ही करना. ठीक है, there are some important considerations. The construction of the residential house should be completed within 3 years from the date of transfer. ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट इज इररेलेवेंट कि आपने कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए 3 इयर्स में. मतलब परचेज के लिए तो 2 इयर्स की है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए इट इज 3 इयर्स. कंस्ट्रक्शन मे बी कमेंस्ड इवन बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द हाउस. तो जैसे परचेज में 1 साल पहले की एग्जेम्पशन दी हुई है ना, कि 1 साल पहले भी आप खरीद सकते हो, सिमिलरली जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी आप पहले कमेंस करा सकते हो. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ट्रांसफर के बाद ही आप शुरू कराओ कंस्ट्रक्शन. The case of allotment of flat under self-financing scheme of DDA or similar schemes of cooperative societies or other institutions is also treated as construction of house for this purpose. So suppose आपने किसी बिल्डर के थ्रू, जैसे होता है ना काफी बार कि अभी बन रहे हैं फ्लैट्स और कुछ इयर्स बाद आपको पोजेशन मिल जाएगा, मतलब इट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे डीडीए के फ्लैट्स हैं आपके, या कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हैं आपकी, कि आपने भर दिया बट आपको अभी नहीं मिल रहा, अभी वो बन रहे हैं, बाद में मिलेगा. तो ये सब इंक्लूसिव है, ये सब आपकी इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है. The investment in residential house would not only include the cost of purchase of house, but will also include the cost incurred for making the house habitable. Habitable means मतलब रहने लायक. ठीक है, it's not just important कि आपने खाली उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं टू मेक इट एज अ लिविंग एक्सपीरियंस, यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस, उससे रिगार्डिंग जितने भी खर्चे लगे हैं वो सारे आपके इंक्लूसिव हैं उसमें. Then holding of legal title is not necessary if the taxpayer pays full consideration or substantial portion of it within the period given above, then the exemption will be अवेलेबल. ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर लीगली आपके वो नाम ट्रांसफर हो. अगर आपने सारी कंसिडरेशन पे कर दी है या सब्सटेंशियल कंसिडरेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रॉपर्टी, यू हैव ऑलरेडी पेड इट, और उसके बाद इट विल बी हैंडेड ओवर, या रजिस्टर जो भी सेल्स रजिस्ट्रेशन डीड है वो बाद में बनेगी, डजंट मैटर, you will get the exemption because you have paid the full consideration or the substantial portion of it. So उसमें आपकी रिवोक नहीं होती है कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशन. Purchase of tenancy right in a building does not amount to purchase of a house property and the exemption is not available. Tenancy rights एक concept होता है जिसमें जो लैंडलॉर्ड से एक जो टेनेंट है वो टेनेंसी राइट्स खरीदता है कि मैं यहाँ पे एज अ टेनेंट लाऊंगा. वो इसमें इसका मतलब कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें वो इस अंदर कोई क्लेम एग्जेम्पशन वगैरह मिल सकता है. इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग.
A taxpayer may sell 2 house properties and he may purchase 1 house property for the purpose of claiming the exemption. This is also allowed कि उसने छोटे छोटे 2 अपने houses बेचे हैं और जो उसके capital gains बन रहे थे उससे उसने एक बड़ा house खरीदा है, तो it is included. So खाली 1 residential house property की condition नहीं है, 2 भी कर सकता है. ठीक है. So suppose Mr. X sells a residential house property situated in Delhi for rupees 13 lakhs. The stamp duty value is rupees 15 lakhs and the expenses on transfer is rupees 10,000. On July 10, 2020, it's in our previous year, and it was purchased by him on October 6, 2004 for rupees 90,000. ठीक है. So बेची कितने की? 13 लाख की. अभी ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगी आपको. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये था, ये एक्सपेंसेस थे. On December 20, 2020, he purchased a residential house property in Noida for 15 lakhs. However, the Noida property is transferred on December 25, 2020. Stamp duty value is rupees 23 lakhs 20,000 for rupees 20 this. ठीक है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी थी, इतने की उसने बेच दिया. कब बेची है उसने? December 25, 2022. तो इसने आफ्टर 2 years बेची है, राइट. हमारी लिमिट क्या थी, कितने टाइम तक उसको रखना था? 3 साल तक. बट इसने 3 साल के अंदर अंदर ही बेच दिया, तो इसका मतलब फिर से हमें करना है. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लो. क्वेश्चंस में गिवन होती है काफी बार ना, जब भी हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन होती है. Stamp duty value at the time of transfer is taken as full value consideration if it exceeds 105% of actual sales consideration. अब क्वेश्चन देखो, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन में कितने? 13 लाख है सेल कंसिडरेशन. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 15 लाख. एक बार कैलकुलेट कर लो कि क्या ये 105% से ज्यादा है? 105% तो बैठ रहा है 13,65,000 और इसने एक्चुअल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 15 लाख. तो डेफिनेटली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन से. इसका मतलब अब आप सेल कंसिडरेशन नहीं, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे. ठीक है. हमेशा जहां पे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आएगी ट्रांसफर के टाइम पे, वहां पे जल्दी से देखना कि सेल्स कंसिडरेशन से क्या वो 105% से ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो फिर सेल कंसिडरेशन नहीं लोगे, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे. ठीक है. और जब एक्वायर करते हैं उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना 23,20,000, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशंस होती है उसमें हम सिर्फ सेल कंसिडरेशन पर चेक करते हैं. एक्विजिशन जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अब जिस इंसान ने जितने में खरीदी है वही मैटर करेगा ना, चाहे उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी भी हो. पर अगर वो बेच रहा है कम में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो तो कोई फ्रॉडुलेंट कोई चीज कर रहा है ना, है ना. कोई इंसान बेचेगा तो नहीं ना कम में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से. तो इस वजह से जो पर्सन है उसको जो वो एक्वायर करता है वो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखते हैं, बट जो सेल कंसिडरेशन उसमें एक बार चेक करते हैं कि उसने क्या किया, क्या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा है, क्या सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है क्या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. अगर है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है. तो इस केस में है ज्यादा, इसलिए हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे हैं 15 लाख, ना कि 13 लाख. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 10,000, सब्ट्रैक्ट किया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में स्टैम्प ड्यूटी का कोई रोल नहीं है. तो कॉस्ट कितने में खरीदी थी उसने? he bought it on for 90,000. so 90,000 divide by जिस भी ईयर के में खरीदी थी इसने 2004-5 का CII 113 into the CII of the year in which the property is transferred, which is previous year 2021. So this has come out to be 2,39,735. So you subtracted, this is the balance. Now you have to see it in case he has purchased the other house property. So इसने क्या किया? इसने उसी प्रीवियस ईयर में एक नोएडा में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 15 लाख की. सो 15 लाख, बट आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन्स. सो कैपिटल गेन्स ही कम है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी तो 15 लाख की, तो जो थे वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो गए और निल हो गए. बट इन द नेक्स्ट 3 years he has sold off the property. कब सोल्ड ऑफ करी है उसने? इसने कर दी है प्रीवियस ईयर 22-23 में.
ठीक है, 22-23 में, और कितने की ट्रांसफर करी है उसने, 22,90,000। आप जल्दी से देखो, 22,90,000 का 105%, 24,04,500. So that is not that the stamp duty value is not greater than 105% of the sales consideration. इसी वजह से हम सेल्स कंसिडरेशन जो एक्चुअल है वही लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब लेते हैं जब सेल्स कंसिडरेशन का 105% उससे कम होता है। अब इस केस में वो ज्यादा है, तो इस केस में हम 22,90,000 लेंगे उसकी सेल्स कंसिडरेशन, 22,90,000। कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, नेट सेल्स कंसिडरेशन है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने की खरीदी थी उसने, he bought it for 15 lakhs, but he has already claimed the exemption, right? He has claimed the exemption for 12,50,265, so it will be subtracted from 15 lakhs. क्योंकि क्या किया उसने, 3 साल नहीं रखा ना, नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर बेच दी, तो इसका मतलब जो उसने फायदा उठाया था अब वो उसमें से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो फायदा था उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब ये 15 लाख की जगह क्या हो गई, 2,49,735, and this is the long term capital gain on which he has to pay the tax now. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड की तरह ही है, बस इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है, और जहां पे भी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू आएगी इसका मतलब 105% का कंसेप्ट है।